पहले स्टार्ट करेंगे. सो वी today's topic is relational operator. So in the previous classes and in other classes I have already explained about the relational operators also, but we will see it again in a theoretical concept. Okay, that time I have explained as a practical form, but now we will see in a with a theoretical concept also. You see relational operator कि relational operator क्या होता है and why we use these relational operator and what is these relational operator. So see it here, these are the symbols. Okay, these are the symbols of for the relational operator. These are the relational operator. You can see this is the less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, equal to. Okay, if you have to show the double equality. Okay, so you have to use here the double equal to. Okay, and then not equal to. Not equal to का मतलब क्या है? It is not equal to this. Okay, means ये इसके बराबर नहीं है. Okay, if you are using here the less than or equal to, it's mean ये इससे छोटा या इसके बराबर होना चाहिए. You can see there is the two things here, equal to and less than or equal to. और means या तो छोटा हो या इसके बराबर हो. Okay, it is a greater than means is greater than or equal to मतलब या तो इससे बड़ा हो या तो इसके बराबर हो. Okay, so these are the relational operator. These relational operator always return the answer into the Boolean form. Okay, Boolean form means always return the answer in a true or false form. या तो ये true होगा या तो false होगा. Okay, suppose if you are using here the arithmetic operator, suppose 2 plus 5. Okay, 2 plus 5 means it will return the 7. Okay, वो कुछ number return करेगा. But if you are using here the relational operator, it means it will always return the answer into the true या false. ये आपका true या false में return करेगा answer. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि true या false में, but how you can say कि ये true false में देगा. Okay, so we will see in the program. हम program में देखेंगे. So now and today's topic is here topic is relational operator. Okay, relational operator. So everyone knows that relational operator means greater than, less than equal to, greater than equal to and not equal to. These are the relational operator. Okay. Or comparison. Okay, these operators are called the relational operator or comparison operator. क्यों? Because using these operator we can compare any value. हम कोई भी value compare कर सकते हैं. Okay, या हम relationship generate कर सकते हैं. So what I have to explain is okay, that it always return the answer into the true or false form. True या false में देता है. So how we can see that? Okay, so print. I'm saying here 3 is greater than 2. So now what it is, this condition true or false? It can be true or it can be false. So let us see that 3 is greater than 2. Yes, it is correct. आप सही हो, you are true. So it should return the true. So you can see here कि इसने true return कर दिया. क्यों? क्योंकि condition आपका true है. Suppose if you are writing here 3 is less than 2. So what will you say? No ma'am, it is not correct. 3 is not less than 2. So what it will return? ये सिर्फ दो ही वैल्यू इसके पास है. It is these values are called the Boolean values. Okay, true या false. या तो true देगा या तो false देगा. तो कंडीशन true है तो आपका true देगा. अगर कंडीशन false है तो false देगा. तो see, this condition is saying that 3 is less than 2. 3 क्या है? 2 से छोटा है. So it is not correct. It's mean false. It will return here the false. आपका क्या करेगा? ये false return कर देगा. Suppose I'm writing here the 3. Okay, 3 is less than 3. So what do you think? What it will return? Yes, Priyanshi? Yes? What it will return? Hello, Priyanshi, are you here? Yes. Yes, Priyanshi. Yes, Priyanshi.
tell me that what it will return, true or false? Anjali? Yes, Anjali, are you here? Aman? Aman, are you in the class? Yes, ma'am. Yes. Yes, now Aman, tell me that what it will return, what it will give, true or false? क्या देगा ये? I'm Hello, Aman. true, true. You are saying true, but how it will return the true? We are saying 3 is less than 3. 3 की वैल्यू जो है वो छोटी है 3 से. So it is not correct. वो तो equal है. Okay. But it is saying कि less than or it is less than 3. So it is not true. Okay. So it will return the false. ये आपका क्या करेगा? False return करेगा. It has returned the false. अब यहाँ पे क्या है? अगर मैंने यहाँ पे कर दिया equal to, हमने कहा 3 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि या तो इससे छोटी हो 3 से या इससे बराबर हो. तो यस, वी कैन सी हियर दैट इट इज नॉट लेस देन इट. वो छोटी नहीं है इससे, बट इसके बराबर जरूर है. सो इन दिस सिचुएशन इट विल रिटर्न द ट्रू. अब ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, या आइदर यू हैव यूज हियर द इक्वल टू. इक्वल टू अगर आपने लगाया कि 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है, सो यस इट इज करेक्ट. इट विल रिटर्न ट्रू. ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा. सो each and every time I have given the many examples, you have seen it has only printed either true or either false. Okay, इसने true या false ही return किया. इसके अलावा other than this it has not returned anything. इसने और कुछ return नहीं किया. Okay, so not equal to का मतलब क्या है? इसके बराबर नहीं. So आपको कैसे यूज करना है? You have to use like this. आपको इस तरह से यूज करना है. 3 is not equal to 3. Okay, यानी कि 3 जो है ये इसके बराबर नहीं है, इस 3 के बराबर नहीं है. So मंथन, what it will return, it is true or false? Yes, Manthan, say it fastly. Manthan, are you here? Anjali? Yes ma'am. हाँ अंजलि, बताओ आप कि what it will return, true or false? क्या रिटर्न करेगा? ये क्या आंसर देगा अगर हम इसको रन करते हैं तो? Ma'am, false. You are saying false. Okay, so हम देख लेते हैं कि what it will return. 3 is not equal to 3. ये कह रहा है 3 के बराबर नहीं है. So you are wrong. Means this statement is wrong. ये जो कंडीशन चेक कर रहा है ये गलत है कि ये कह रहा है कि ये 3 इस 3 के बराबर नहीं है. So it is not correct. ये इसके बराबर है, तो it will return the false. Okay, false इसने दे दिया. ओके, सो अंजलि सेज द करेक्ट आंसर, सेट द करेक्ट आंसर कि इसने false रिटर्न कर दिया. नाउ सी इट हियर, आई एम डूइंग द चेंजेस हियर. 6. सो नाउ हर्षुल टेल अस दैट व्हाट इट विल रिटर्न. 6 इज नॉट इक्वल टू 3. 6 3 के बराबर नहीं है. Ma'am, true. Yes, that's correct. It will return the true. You can see here it will return the true. So I have told you that or relational operator always return the answer into the true or false form. So you have seen all the symbols, all the relational operators. Okay, so now see, it is also called the comparison operator. मैंने आपको ये भी बताया है, because we compare it. देखो comparison का मतलब क्या होता है? comparison का मतलब होता है हम compare करते हैं एक दूसरे से. If we have two things, then we will compare that it is greater than this, it is good than this. Okay, suppose आप two friends हो, तो आप two friends में हम almost it can be the comparison. Two brother and sister हैं, तो उसमें comparison हो सकता है कि ये अच्छा है, ये naughty है. Okay, ये simple student है, ये naughty student है, और या smart student है, means study में smart student है, like this. So there can be comparison. Okay, so हम क्या करते हैं? हम इसी के बेस पे using these operators we can compare the values. हम compare value कर सकते हैं. Okay, so it is also called the comparison operator. So now see it here. Here we have seen the comparison on the numbers. हमने numbers पे comparison देखा, but now we will see that how we can
compare the strings. अगर हमें strings compare करना है, like see it here कि यहाँ पे ये string के इतना सारा theoretical concept दिया है, okay, इतना सारा, और after that there is a some example, यहाँ पे कुछ examples दिए हैं for the practice purpose. So ये examples हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, but before this what I am going to show you that firstly आपको ये देखना है कि how we can compare the characters. हम compare characters को कैसे करेंगे. So one I'm asking one question to one student. Suppose I am deleting this, okay. Before this I am telling you one thing is also कि यहाँ पे तो directly मैंने numbers के साथ कर दिया, but it is not compulsory कि आपको directly number के साथ करना है. You can do these things on the variables also, like a is equal to 6 and b is equal to 3, or in place of the direct numbers we can write here the a and b, okay. So you can do this also. So see it here, what we have to do now, we have to perform the relational operator. We have to use the relational operator on the strings, okay, on the character. अब character पे हम करेंगे. So suppose I am taking the simple statement, and then simple statement is print here a is equal to a. See it here, why I have written here into the quotes, क्योंकि हम now we are working on the value. हम यहाँ पे ये value है, it is not a variable, a is a value. और किस type की है, it's a string type के, that's why I have written here it in a colon, okay, sorry, not colon, single quotes. So now who can tell me the answer? Harshul, can you give us, can you tell us the answer? What it will return? It will return true or false? What? प्रियांशी, अमन, अंजलि. मैम वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैं सुनाई नहीं दिया, आप एक बार वापस से पूछना. यस, अभी देखो, अभी स्ट्रिंग के बेस पे मैंने अभी उतना कुछ बताया नहीं है, बट आई वांट टू आस्क दैट यू कैन सी देयर इज अ स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट आई हैव रिटन, वन लाइन आई हैव रिटन, स्मॉल a is equal to कैपिटल A. मीन्स हमने ये देखा है कि ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के. सो इट विल व्हाट इट विल रिटर्न, व्हाट इट विल गिव, ट्रू और फॉल्स? मैम मे बी ट्रू. You are saying true. Okay, Priyanshi, what do you say? Ma'am. Yes. Ma'am, I think false. You are saying false. Okay. And Anjali and Aman? Ma'am, false. You are saying false. Okay. Anjali? Ma'am, false. Okay. You are saying false. Okay. So see it here. Yes, it is a false statement. Okay. So it will return the false. Don't worry, Harshul. We will see that how it is false. Okay. अगर मैं आप लोगों से पूछूं जिसने भी false answer दिया, so I want to ask from Anjali. Anjali, can you tell us that how have you identified that it is a false? कैसे आपने पता किया? How you know? Ma'am, small Means- letter है. Yes, means आपने एक तरीके से आपने ये गेस किया कि ये स्मॉल लेटर है और ये आपका कैपिटल लेटर है, तो इट कैन बी इट इज अ फॉल्स. ओके, सो योर एजम्पशन इज करेक्ट, बट इसके पीछे भी हमें कुछ लॉजिक है. अगर मैंने बाकी लोगों से पूछा तो अदर स्टूडेंट विल आल्सो से कि मैम ये आपका फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और यही कंसेप्ट है कि ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया like this, so now अब क्या कहोगे आप? Yes, Priyanshi, Aman, Anjali, Manthan, Rohan, now what will you say? It is true or false? What it will return? Firstly आप इसको देख लो, जो मैंने equal to लगाया था. I think I have not shown the answer. You can see it has false. Okay, we have seen, but if I have changed the symbol, I have used this symbol, okay, greater than symbol, then what do you say? It is true or false? False. You are saying false. Anjali?
Say it fastly. मैम नहीं पता। मैम नहीं, false। so you are saying false. Okay, and Priyanshi, Manthan, Rohan, say it fastly. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये गलत भी बोल रहे हो आप. At least you are Ma'am, starting. false. You are saying false. Okay, so don't worry. अगर आपका आंसर गलत भी होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको अभी ऑब्वियसली है कि आपको मैंने बताया नहीं है. So it can be wrong also. Okay, so you are saying wrong, but I am saying true. Okay, अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने अभी इससे पहले जो आपने एग्जांपल के आंसर दिए थे, दैट वाज जस्ट आपने एक मींस एक गेस किया था. यू हैव जस्ट ओनली गेस दैट. ओके, कि आपने अपना अपना लॉजिक लगाया तो दैट वाज द करेक्ट. ओके, बट दिस टाइम इट इज नॉट करेक्ट. सो अगर आप इसका लॉजिक आप समझ जाओगे सो इजिली आप मुझे बता दोगे. ओके, फिर उसके बाद से आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाला. सो सी इट हियर कि हाउ इट हैज कंपेयर्ड. उसने कैसे इसे कंपेयर किया कि ए बड़ा है और ये छोटा है. ओके, सो सी इट हियर कि ये किस पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन द ASCII कोड. ओके, अब आपको नहीं पता कि ये ASCII कोड क्या होता है. सो वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू ऑल स्टूडेंट दैट हमारा सिस्टम क्या कौन सी लैंग्वेज समझता है. एनीवन नोज? या आप बचपन से ही पढ़ते आते हो, हर बार बताते रहते एग्जांपल्स के तौर पे कि हमारा कंप्यूटर ये समझता है, ये लैंग्वेज समझता है. एनीवन नोज? हर्षुल? मैम बाइनरी। बाइनरी, यस. आपको पता है ये कि आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी समझता है. बाइनरी का मतलब क्या है? या तो 0 या तो 1. ओके, या नहीं मींस 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है. अब 0 और 1, यस. अगर हमने मान लो कि अगर सपोज मुझे ए प्रेस करना है तो अब आप ये कहोगे कि मैम हमने तो ए प्रेस किया, अब इसको 0 1 में कैसे करेगा? तो इट इज टफ. ओके, हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अगर मान लो कि हमने प्रेस किया 2. ओके, तो 2 क्या होता है कि हमने 2 प्रेस किया, बट ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा. अब वो कन्वर्जन कैसे होता है हम उसको कभी फ्यूचर में अगर हमारे सब्जेक्ट में आया, हमारे चैप्टर में आया तो हम देखेंगे. बट सी इट हियर कि जितने भी आपके कीबोर्ड पे आपका नंबर्स, सिंबल्स और कैरेक्टर शो होते हैं वो उनको हम सिंबल बोलते हैं. ओके, आप नंबर भी देख रहे हो ना, इट इज ऑल्सो अ सिंबल. हमें पता है इन रियल लाइफ वी नो दैट इट्स अ नंबर और ABCD इज अ अल्फाबेट. ओके, स्मॉल और कैपिटल. बट इन अ कंप्यूटर टर्म वी कॉल्ड इट, कीबोर्ड पे जितने भी आपके कैरेक्टर दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड द सिंबल. ये सिंबल्स हैं एंड इस सिंबल को के कुछ नंबर प्रोवाइड है. ओके, कुछ कोड प्रोवाइड है. फॉर एग्जांपल आप क्या है कि आप अपने स्कूल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये इस कमरे, इस रूम नंबर, इस रूम को हमने ये नंबर प्रोवाइड किया है, इस रूम को ये नंबर प्रोवाइड किया है. तो सेम हेयर जितने भी कीबोर्ड पे आपके सिंबल्स है दे हैज सम नंबर. उनके कुछ नंबर है. लाइक अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो कैपिटल ए का जो नंबर है इन अ कंप्यूटर टर्म इट इज 65. ओके, और उसके बाद से अगर स्मॉल ए की बात करूं तो इसका जो नंबर है वो 97 है. सबके फिक्स है. ओके, इट विल नॉट चेंज. ये आपके फिक्स हैं. तो दीज नंबर्स 65 और 97 जो है इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द ASCII कोड. ओके, यानी कि ये जितने भी सिंबल्स हैं इनके कुछ ASCII कोड है. ओके, ASCII कोड है यानी कि इनके कुछ नंबर्स हैं जो कि अगर हमें पता होंगे तो हम इजिली बता देंगे कि क्या कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा. ओके, अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा बाइनरी नंबर है, आप 65 और 97 अब हमें बता रहे हो. तो सी इट हियर कि अगर हम किसी का भी बाइनरी कैलकुलेट करेंगे 0 1 तो वो नंबर फॉर्मेट में होगा तो ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे मान लो कि 2 मैंने लिखा, 2 का बाइनरी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 1 और 0. ओके, 1 0 वी कैन सी दैट कि ये 10 है बट इट इज नॉट 10. ये 1 और 0 बाइनरी फॉर्मेट में है. अगर मुझे 5 लिखना होगा, अगर मुझे यहाँ पे 5 लिखना है, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका बाइनरी कोड होगा 101. ओके, इट इज नॉट 101, 101 नहीं है, ये 101. इसमें बाइनरी में 5 हम ऐसे लिखते हैं. ओके, 5 को बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं. सो सी आपका क्या होता है कि जितने भी सिंबल्स होते हैं सबके एक नंबर कोड होते हैं. ओके, इन कोड को हम बोलते हैं ASCII कोड. और जब हम ए प्रेस कर रहे हैं तो ए प्रेस करने का मतलब है कि ये 65 जा रहा है मेमोरी के पास, सिस्टम के पास, और 65 को क्या करता है कि ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या होता है कि जैसे ही हमने कैपिटल ए प्रेस किया तो इट्स मीन की 65 जा रहा है. और 65 क्या होता है जब मेन मेमोरी के पास जाता है तो वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में. मशीन के पास जब जाता है तो वो आपका क्या होता है
कि कन्वर्ट होता है बाइनरी में, तो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट है वो आपको शो कर देता है. सेम हेयर, इफ वी आर प्रेसिंग हेयर द स्मॉल a, इट्स मीन 97 इज द कोड, इट विल गो टू द सिस्टम. सिस्टम के पास 97 जाएगा और ये आपका ऑटोमेटिक बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सी इट हेयर, विच वन इज ग्रेटर, 65 ग्रेटर है या 97 ग्रेटर है? 97. 97. So that's why it has given the true कि a is greater than this a. okay, यानी कि यहाँ पे क्या है, इंटरनली हमें नहीं शो हो रहा, बट इस यहाँ पे 97 लिखा है और यहाँ पे क्या है 65 है. सो इट इज ग्रेटर. सो नाउ सी इट हियर कि अब मैं कुछ सिंबल्स यहाँ पे बता रही हूँ कि मीन्स आपको, जिससे आपको पता चले कि आपको कैसे कंपैरिजन करना है. तो सी, आपका कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपका होता है 65 टू 90. अब देखो यहाँ पे 65 टू 90 का मतलब क्या है, ए का 65 हुआ, फिर बी का 66 हुआ, सी का 67 हुआ, इस तरह से आपका 90 तक चला जाएगा. देन आपका स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ये आपका 97 से स्टार्ट होता है, 97 टू 122, यानी कि स्मॉल ए का 97, देन स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, लाइक दिस. ओके, इस तरह से 122 तक, 2 तक ये कैरेक्टर्स में जाएगा. आफ्टर दैट यहाँ पे हम आते हैं 0 to 9, सॉरी 0 to 9. ओके, 0 to 9 का मतलब क्या है, इसका आस्की कोड क्या होगा? सपोज अगर हम कभी भूल भी जाते हैं तो भी हमें अभी पता चल जाएगा. सो लेट मी चेक वन थिंग इज हियर, मैं आपको अभी बता रही हूँ. ओके, सो सी, 0 का जो आस्की कोड होता है वो होता है आपका 48 टू, वी हैव सीन ना 9 का 57. ओके, 48 टू 57. तो सी, आप लोग ये नोट दिस इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में इसे नोट करो. एंड आफ्टर दैट अगर अब मैं कंपैरिजन करूंगी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो इजिली एवरीवन कैन से. ओके, सी इट क्लियरली. अगेन आई एम राइटिंग हियर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओनली फॉर यू, कि आपको कंफ्यूजन ना हो. कैपिटल ए का हो गया आपका 65, और फिर अगर कैपिटल बी की बात करें तो 66, कैपिटल सी इज 67 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाता है. कहां तक जाएगा? 90 तक. सेम हियर, स्मॉल ए इज इक्वल टू 97, स्मॉल बी इज इक्वल टू 98, small c is equal to 99 and so on. Same with the numbers, ये numbers हैं हमारे. यहाँ पे क्या है, अगर आपने 0 लिखा, 0 का मतलब क्या है, we are not pressing the 0, 0 is a symbol, और इसका ASCII कोड क्या है? इसका ASCII कोड है 48. and after that 1 का ASCII कोड जो है आपका 49, then आपका 2 का ASCII कोड है 50 and so on. Is it clear to all? सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, so now one example I will give you. Okay, after that we will wind up the class. So ये ORD function क्या है, I will tell you in the next class, don't worry. So now I'm writing here print, sorry, B is not equal to C. So what will be the answer? And then print, see it fastly, and then we will wind up the class. 9 is a symbol, is less than 8. Okay, so बस हम 2 ही एग्जांपल देखेंगे. So now tell me, Aman, say it fastly for this. Yes. मैम फर्स्ट जो है उसका फॉल्स है और जो सेकंड है वो ट्रू है. हाँ, सॉरी मैम जो b इज नॉट इक्वल टू c इज फॉल्स और 9 इज वो जो सेकंड वाला है उसका नाम ट्रू है.
You are saying true. Okay. Anjali. मैम फर्स्ट वाला ट्रू है, Yes. सेकंड भी फॉल्स। Second. अब see it here. I'm saying to all students, आप इसमें भी देख सकते हो. You can see it here. इस रेंज में देख सकते हो. Okay. After that, Harshul, say it fastly, Harshul. मैम फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। Okay. नो मैम सेकंड वाला ट्रू है। You are saying true. Okay, Priyanshi. यस मैम, मैम फर्स्ट वाला तो ट्रू है एंड मैम सेकंड वाला 9 मैम सेकंड वाला आई थिंक फॉल्स होगा। You are saying false. Rohan, will you say something? Manthan. Yes, Manthan. Okay, so now it's fine. See it here. First thing is there B. B is not equal to C. ठीक है, तो वैसे तो हम वैसे ही देख के बता सकते हैं कि B की वैल्यू B C के इक्वल नहीं है, तो इट इज ट्रू, ये आपका ट्रू होगा। और वैसे हम कोड देखें यहाँ पे, तो इसका B का कोड जो है आपका 98 होगा, ओके, और C का 99। सो ऑब्वियसली है कि 99 इज नॉट इक्वल, 98 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये आपका क्या है कि ट्रू होगा आंसर। ओके, आफ्टर दैट 9 इज लेस देन A, तो 9 का सिंबल 9 का आस्की कोड क्या है, 9 आस्की कोड ऑफ द 9 इज 57। यहाँ पे इसका मतलब क्या है 57, यहाँ पे क्या कह रहा है 57 इज लेस देन स्मॉल a का मतलब क्या है 97, तो कंडीशन इज ट्रू ना। Yes, 57 is less than 97. So see it here. यस मैम। Okay. So hopefully everyone has understood the concept now. Okay. Yes. हम जो स्मॉल बी है वो क्या है 93 है। क्या चीज? जो स्मॉल बी है उसकी वैल्यू क्या है 93। इसकी यस मैम। 9 स्मॉल a की जो वैल्यू है वो 97 है, देखो ना A to Z का जो है बी 97 to 122 B। हाँ अब देखो यहाँ पे स्मॉल b है, ये कैप स्मॉल a का जो है 97 है, तो स्मॉल b का क्या होगा 98 हो गया। यहाँ पे इसी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था, ये ऐसे सीक्वेंस में जाएगा और कहाँ तक जाएगा 122 तक जाएगा। ठीक है, यस अमन, आप इनको भी देखो। ठीक है, यू ऑल हैव टू सी दिस वन इज ऑल्सो, मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको हेल्प मिले। ओके अमन।